let's discuss electric field. Let's see what basically electric field is. Suppose we have a charged body. And let's say charge on the body is Q, plus Q. At this place, let's say at point P, at some distance r from the charged body, we have a point charge of 5 coulombs. And this body exerts a force of 60 newtons on this 5 coulomb charge when it is placed at a distance of r from it at point P. Now if I ask you that if you place a different charge which is 8 coulomb at the same position, and what would be the force on it, then थोड़ा टाइम लगेगा आपको ये फाइंड करने में, थोड़ा सा. But if I give you information in this form, that on 5 coulomb charge, force is 60, and therefore on 1 coulomb charge, force is 60 upon 5, which is 12 newtons per coulomb. What I am saying is, if 5 coulomb charge experiences force of 60 newtons, then 1 coulomb charge will experience a force of 60 upon 5 or 12 newtons per coulomb. That means on unit charge, force is 12. If force on unit charge is 12, and then I ask you what is the force on 8 coulomb charge, then you can directly say that that force will be 8 multiplied by 12, which is 96 newtons. Now what is happening? Instead of giving information in terms of force on 5 coulomb charge, if I provide you information for 1 coulomb charge, that what is the force on 1 coulomb charge, which is coming out to be 12 newtons per coulomb, तो फिर ये easy बन जाता है 1 के multiples per force को find करना. For example, on 8 coulomb, we say that force is 8 into 12, which is 96 newtons. अगर किसी ने यहाँ पर 3 coulomb charge रखा, तो आप बोलते हैं कि on 1 force is 12, and therefore on 3 force will be 12 3 the 36. This force which we found on 1 coulomb charge, and that force is 12 newtons per coulomb, is called strength of electric field at this point P due to this charged body. Again, what did I say? This force on 1 coulomb charge, which is 12, अगर आप यहाँ पर 1 coulomb चार्ज रखते तो उस पर लगने वाला जो फोर्स होता है उसको हम बोलते हैं 12. हमने बोला इसको फोर्स नहीं बोलेंगे, हमने बोला इस पॉइंट P पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ है, suppose that is E, then that electric field strength is 12 newtons per coulomb. So this electric field is basically force. लेकिन force किस पर? Force on a unit charge. This force on unit charge, in short, is called strength of electric field. Now, we know that force is a vector quantity, and therefore electric field is also a vector quantity, and its unit you can see is newtons per coulomb. A force has a magnitude and direction.
Similarly, electric field is a magnitude and its direction is what? It's nothing but force. तो जिधर लग रहा है फोर्स, इसी डायरेक्शन में इस जगह पर क्या प्रेजेंट है? इलेक्ट्रिक फील्ड. किसका इलेक्ट्रिक फील्ड? इस चार्ज बॉडी का इलेक्ट्रिक फील्ड. पॉइंट P पर ये चार्ज बॉडी कितना फोर्स लगा रही है? 12. कहने का मतलब ये, सपोज आपने पूरी इंफॉर्मेशन को रिमूव किया. Somebody came and he wrote a remark at this point that if you place 1 coulomb charge at point P at a distance of r from the charge body, then force on that point charge will be 12. अब आए, आपने उस पूरे रिमार्क को इरेज किया और उसकी जगह सीधे सीधे क्या लिख दिया? पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? 12. The same thing you have done in 11th in gravitation. When we define G, this G is nothing but force, but force on unit mass. G is called what? Force. किस तरह के मास पर? Unit mass. Similarly, E is called what? E is called force on unit charge. Now, अब इसी पूरी चीज को एक मैथमेटिकल प्रेजेंटेशन देते हैं जिससे कि अपन इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स को आपस में रिलेट कर सकें. Suppose at this point P, we have placed charge Q. Remember, this Q is a point charge. Distance of point P from the body is r. Well, remember, you cannot use Coulomb's law, F equals to K times Q into Q upon R square, because this charge body is not a point body. And Coulomb's law is valid when both are point bodies. Force of this charge body on this Q is F. And we need electric field at this point P. We will say that force on Q is F. Since force on Q is F, therefore force on unit charge, this one means unit charge. Force on unit charge is therefore F upon Q. And this number F upon Q is called electric field E. So now we have the formula. Electric field E at point P. Electric field E at this point P is what? F divided by Q. And since things are vector, we can do this. This E vector is nothing but F vector divided by Q. Now this thing can take this shape. F is now what? Q multiplied by E. Now remember that Coulomb's law, K Q1 Q2 upon R square was valid for only point charges, and both bodies were point charges. Whereas what does this formula say? It says that if you know the value of electric field at point P, or at any point, and if you place some charge Q at that point, then force on that charge will be Q multiplied by E. Now this F equals to QE is valid for any type of charge system. This charge body can be a point body, can be a ring body, can be a sphere, or whatever shape it can take. Force can be written as Q multiplied by E. Look at its similarity with gravitation in 11th.
As I told you that we define G as force on unit mass on 1 kg. Let's say unit mass is 1 kg. On 1 kg, force is what? G. On unit mass, force is G. Therefore, force on M is F equals to mg. This is the form which you always know, that force on M is given as M into G. In electrostats, you replace M with Q and you replace G with E, and everything else is what? Same. So this F equals to QE. What does it say? And whose electric field is at this point P? ये जो चार्ज बॉडी दिख रही है, इस चार्ज बॉडी ने r डिस्टेंस पर क्या जनरेट किया? इलेक्ट्रिक फील्ड. और वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है E, उस इलेक्ट्रिक फील्ड में आपने किसको रखा हुआ है? पॉइंट चार्ज को. तो ये जो पॉइंट चार्ज है, इस पॉइंट चार्ज पर जो फोर्स लगेगा इस बॉडी का, वो इस फॉर्मूले से कैलकुलेट होगा, F इक्वल्स टू Q मल्टीप्लाइड बाय E. इस F इक्वल्स टू QE को और ज्यादा डिटेल में समझने के पहले कुछ छोटे छोटे से पॉइंट्स जो हमने प्रीवियस सेक्शन में डेवलप किए हुए, उनको जरा देखते हैं. Suppose we need to find electric field of a point charge, which means the charged body we are discussing is itself a point. What I am saying is, this is the charged body. And charge on this body is Q. And this Q, remember, is a point charge. This Q is a point charge. And we need its electric field at this point P, which is at a distance of R from Q. But to find electric field at this point P, what we did, we placed a charge Q. And this Q is also a point charge. Since both bodies are now point bodies, we can easily calculate force of Q on Q. And that force is K times Q multiplied by Q divided by R square. Coulomb's law. At point P, when you place charge Q, force is K into Q divided by R square. And if you need electric field at point P, electric field at point P due to charged body Q, electric field at point P due to the charged body Q, this thing from this equation is F divided by Q, where F is K into Q divided by R square, whole thing divided by Q. This thing is now K into Q divided by R square. This KQ upon R square is called electric field of a point charge. गौर से देखें तो हमने केवल क्या किया? गौर से देखें तो हमने केवल इतना सा काम किया. हमारे पास एक Q था, हमें R डिस्टेंस पर P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना था. अब इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब होता है कि यहां पर आपको एक यूनिट चार्ज रखना है, तो आपने यहां पर एक 1 कूलम चार्ज रख दिया. जैसे ये 1 कूलम चार्ज रखा, ये भी पॉइंट है, ये भी पॉइंट है. इस 1 कूलम पर जो फोर्स लगेगा, उस फोर्स की वैल्यू क्या बनेगी? K into Q multiplied by 1 divided by R square. लेकिन अब अपन बोलते क्या है कि अगर ये यूनिट चार्ज है
तो फिर इस फोर्स को फोर्स ना बोलकर हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी इज के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, वो यहां लिखा हुआ है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकल कर आया, इसी इलेक्ट्रिक फील्ड को, हमने जो लास्ट लेक्चर्स में रिंग का इलेक्ट्रिक फोर्स फाइंड किया था उसके साथ रिलेट करते हैं। पिछले लेक्चर्स में हमने देखा था अपने पास एक रिंग थी, इस रिंग पर चार्ज था Q, इस रिंग का रेडियस था R, इसके सेंटर से X डिस्टेंस पर जब हमने एक चार्ज रखा था Q, इस Q पर जो फोर्स निकल कर आया था उस फोर्स की वैल्यू आई थी K मल्टीप्लाइड बाय Q इंटू Q मल्टीप्लाइड बाय X डिवाइडेड बाय R स्क्वायर प्लस X स्क्वायर टू द पावर 3/2। वो जो वैल्यू थी अपने पास R स्क्वायर प्लस X स्क्वायर टू द पावर 3/2, ये जो फोर्स था, ये फोर्स किसका था? रिंग चार्ज का, इस पॉइंट चार्ज पर। पॉइंट चार्ज रिंग के सेंटर से कितने डिस्टेंस पर है? X। फोर्स ये निकल कर आया था। अब किसी ने आपसे पूछा, so this point is what? P. That find out electric field. Find out electric field at point P due to ring charge Q। तो आपने करना क्या है, जब Q पर फोर्स आपको पता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब है फोर्स ऑन यूनिट चार्ज, और उसको आप किस तरह से डिफाइन करते हैं? F डिवाइडेड बाय Q। F डिवाइडेड बाय Q gets you this K into Q multiplied by X divided by R square plus X square to the power 3/2. So this formula KQX upon R square plus X square to the power 3/2 is nothing but electric field at point P due to this ring charge. फिर से शॉर्टकट में अगर डेवलप करना हो, रिमेंबर दिस फॉर्मूला। आपसे बोला गया यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करो। इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब है फोर्स, कैसे चार्ज पर? यूनिट चार्ज पर। तो जो यूनिट चार्ज का मतलब है यहां पर Q की जगह 1 कूलम रख दो। जैसे ही Q की जगह आप 1 रखोगे, ये वैल्यू क्या बन जाएगी? KQX upon R square plus X square to the power 3/2। लेकिन अगर ये Q 1 है तो फिर इस फोर्स को फोर्स ना बोलकर हम लोग क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड। और जो भी डायरेक्शन इस जगह पर फोर्स का है वही डायरेक्शन किसका आएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड का। इस डायरेक्शन वाले पार्ट को भी नेक्स्ट आर्टिकल में और अच्छे से डिस्कस करेंगे। एज ऑफ नाउ वी हैव फाउंड द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड due to these different charged bodies. Now let's see how do we find direction of electric field. Vector form of electric field which we obtained was this: E equals to F divided by Q। अब इस चीज को थोड़ा अच्छे से केयरफुली देखना, क्योंकि तो यहां पर डायरेक्शंस एंड ऑल इन्वॉल्व हैं। अगर डायरेक्शंस इन्वॉल्व हैं तो फिर ये क्या बनेगा, जरा सा केयरफुल रहिएगा। Electric field is F divided by Q. F is QE. अब यहां इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन करने के लिए
जो बिल्कुल टेक्निकल लैंग्वेज है उसको यूज करते हैं। हाउ डू वी डिफाइन इलेक्ट्रिक फील्ड? अभी तक अपन ने क्या बोला? दैट फोर्स ऑन यूनिट चार्ज। अब इस यूनिट चार्ज के साथ कुछ कुछ चीजें हमने ऐड की हुई है। ये जो Q था, इस Q को हम बोलते हैं टेस्ट चार्ज। इस टेस्ट चार्ज की क्या क्या चीजें आपको पता होनी चाहिए? फर्स्ट थिंग, इट शुड बी यूनिट चार्ज। यूनिट क्यों? पूरा पिछला आर्टिकल इसी चीज को डिफाइन करने में था कि अगर 1 पर पता है तो उसके मल्टीपल्स के फॉर्म में आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना चाहते हो, अगेन अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना चाहते हो तो ये टेस्ट चार्ज आपको पॉजिटिव लेना होगा। यूनिट positive test charge and also small। जो यूनिट चार्ज है, इस चार्ज की वैल्यू बहुत लार्ज नहीं होनी चाहिए। अब आप बोलोगे यूनिट है तो और क्या उसको स्मॉल करेंगे? यूनिट में भी कई चीजें हैं। आप 1 कूलम को भी यूनिट बोल सकते हो एंड 1 माइक्रो कूलम को भी यूनिट बोल सकते हो, 1 नैनो कूलम को भी आप यूनिट बोल सकते हो। इससे फायदा क्या होगा वो यहां समझना। सपोज ये है हमारी चार्ज बॉडी Q, और इसकी वजह से मुझे यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना था। लेट्स डिस्कस व्हाई डू वी टेक टेस्ट चार्ज एज अ स्मॉल चार्ज। अगर आपने यहां पर एक टेस्ट चार्ज Q लिया and let's say this Q is 1 coulomb. If Q is 1 coulomb, तो जो चार्ज बॉडी थी, suppose it's free to move, कोई ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं है, कहीं पर कोई फ्रिक्शन एंड ऑल नहीं है, स्पेस में दोनों बॉडीज फ्रीली आपने रखी हुई थी। आप Q से R डिस्टेंस पर, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना चाहते थे। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड करने के लिए जैसे आपने 1 कूलम चार्ज रखा, इस 1 कूलम का इस Q पर जो रिपल्सिव फोर्स होगा उसकी वजह से ये Q यहां से यहां मूव कर गया। समझ में आया क्या बोला मैंने? कि अगर आपने इस Q को इस पॉइंट P पर रखा, आपका एम था कि Q रखते ही आपको P पर इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा। किसका? इस चार्ज बॉडी का। लेकिन जैसे आपने 1 कूलम रखा, वैसे इस 1 कूलम ने इस चार्ज बॉडी को पीछे की तरफ पुश किया। जैसे ही पीछे की तरफ पुश किया, थोड़ी देर के लिए मान लो कि ये बॉडी यहां से मूव करते हुए यहां तक आ गई। नाउ दिस डिस्टेंस from this place to this place, let's say becomes 4r। तो जैसे ही आपने P पर Q को रखा, इस Q ने बॉडी को मूव कर दिया P पॉइंट से 4r डिस्टेंस पर। हमारा एम था कि हम बॉडी का उससे r डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। उसके लिए हमने क्या किया था? एक यूनिट चार्ज रखा, और उस यूनिट चार्ज पर जो फोर्स था उसका नाम था इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन जैसे ही इस 1 कूलम यूनिट चार्ज को रखा, उसकी वजह से चार्ज बॉडी इस P से 4r डिस्टेंस पर हो गई है। इसका मतलब अब आप जो फोर्स कैलकुलेट कर रहे हो वो r पर नहीं कर रहे हो, वो कितने डिस्टेंस पर कर रहे हो आप? 4r। जबकि एम क्या था? r पर कैलकुलेट करना। कर कितने डिस्टेंस पर रहे हैं? 4r। तो जो फोर्स आएगा जिसको आप इलेक्ट्रिक फील्ड बोलेंगे, वो होगा तो इस चार्ज बॉडी का, लेकिन कितने डिस्टेंस के लिए होगा? 4r। तो अगर आप चाहते हो कि ये बॉडी r डिस्टेंस पर बनी रहे, तो आप इस 1 कूलम चार्ज को कैसा बना दोगे? स्मॉल चार्ज। तो अगर स्मॉल चार्ज बनाया तो मैंने बोला इसको 1 कूलम की जगह लेट्स से 10 टू द पावर -19 और एक इलेक्ट्रॉन आपने रख दिया
जैसे ही आपने इलेक्ट्रॉन रखा, रिमेंबर यू कैन नॉट प्लेस इलेक्ट्रॉन, व्हाई, लुक हियर, व्हाट डज इट से, पॉजिटिव चार्ज, तो आपने एक पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन यहां रखा, तो जैसे आपने एक पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन यहां पर रखा विच इज अ वेरी स्मॉल चार्ज, उस स्मॉल चार्ज की वजह से इस क्यू पर जो रिपल्सिव फोर्स होगा दैट विल बी वेरी 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 स्मॉल, इसलिए इस आर की वैल्यू बहुत ज्यादा चेंज नहीं हो पाएगी, और अगर बहुत ज्यादा चेंज नहीं होगी तो जो आपको यहां फोर्स मिलेगा वो फोर्स इसी चार्ज बॉडी का होगा और कितने डिस्टेंस पर होगा, आर। So for definition we say that this test charge should be what, small. स्मॉल का क्या मीनिंग है समझा दिया, यूनिट का मतलब समझ चुके हैं हम। नाउ लेट्स फोकस ऑन दिस पॉजिटिव पार्ट, ये पॉजिटिव हमने क्यों लिया हुआ है। ये जो अपनी चार्ज बॉडी है इसका चार्ज कुछ भी हो सकता है, प्लस माइनस व्हाटएवर, लेकिन अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना चाहते हो तो आपका टेस्ट चार्ज पॉजिटिव होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, बिकॉज ऑफ दिस फॉर्मेट। क्या फॉर्मेट है ये, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के लिए आप इस फॉर्मूले को यूज कर रहे हैं F इक्वल्स टू क्यू और E इक्वल्स टू F अपॉन क्यू, तो आप बेसिकली कर क्या रहे हैं, सपोज थोड़ी देर के लिए हमने बोला कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड था एट दिस पोजीशन, जो इलेक्ट्रिक फील्ड था उसकी वैल्यू थी 10 आई कैप। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू यहां पर कितनी ली हुई है हमने, 10 आई कैप। अगर इस जगह पर आपका चार्ज -1 होता, चार्ज है -1, तो जो फोर्स निकल कर आता उसकी वैल्यू इस फॉर्मेट से QE से ये बनती, -1 मल्टीप्लाइड बाय 10 आई कैप, which can be written as 10 minus I cap. अब what is happening? अगर आपने +1 कूलम की जगह पर इस जगह पर एक -1 कूलम चार्ज रखा होता, यहां देखना हमारी चार्ज बॉडी पॉइंट P, और इस पॉइंट P पर हमने -1 कूलम चार्ज रखा, हर आदमी को पता है पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज को क्या करेगा, अट्रैक्ट, तो पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट कर रहा है इस तरफ, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, इफ दिस इज आई कैप दिस इज व्हाट, माइनस आई कैप। तो जो फोर्स लग रहा है बॉडी पर, नेगेटिव बॉडी पर, वो लग रहा है इधर। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कहां दिया हुआ है अपने को, आई कैप, विच इज दिस। By definition, if you are interested in finding electric field, तो चीजें आपस में मैच करती रहें, इसके लिए हम बोलते ही क्या है कि जो आप इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के लिए टेस्ट चार्ज लोगे उसको आप पॉजिटिव लो। इससे फायदा क्या होगा, इससे फायदा ये होगा कि आप ये बोल पाएंगे कि इस बॉडी का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका डायरेक्शन है इस तरफ, इसी डायरेक्शन में है इलेक्ट्रिक फील्ड, और इसी डायरेक्शन में क्या है, फोर्स। जिधर फोर्स है उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड बनकर आए। इसके लिए व्हेन यू डिफाइन इलेक्ट्रिक फील्ड यू टेक द टेस्ट चार्ज एज अ पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। अगर आपने टेस्ट चार्ज नेगेटिव लिया होता तो हम क्या बोल रहे होते, अगर टेस्ट चार्ज नेगेटिव होता तो हम ये बोलते कि जिस तरफ फोर्स का डायरेक्शन होगा, अगर टेस्ट चार्ज नेगेटिव है तो जिस तरफ फोर्स का डायरेक्शन होगा उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या प्रेजेंट होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। हमें ऐसे डिफाइन करना पड़ता। तो इस कंफ्यूजन से बचने के लिए हमने जब इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन करना शुरू किया तो हमने क्या बोलना शुरू किया, दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इफ यू नीड टू फाइंड द टेस्ट चार्ज व्हिच यू आर यूजिंग मस्ट बी यूनिट, शुड बी स्मॉल and should also be a positive charge.
तो अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हो, तो मान लीजिए ये है हमारा डैश चार्ज, तो आप बोलेंगे कि बहुत छोटा हो, जिससे कि चार्ज बॉडी डिफ्लेक्ट ना हो जाए, उसका चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन चेंज ना हो जाए, इसकी जो स्ट्रेंथ है चार्ज की, दैट शुड बी स्मॉल। एक्सप्लेन कर दिया। ये जो डैश चार्ज है ये नेगेटिव नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए? पॉजिटिव। अगर ये पॉजिटिव है तो जिधर फोर्स लग रहा होगा उसी डायरेक्शन में क्या प्रेजेंट होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड।